آپ جو تھے، آپ جو ہیں اور آپ جو آنے والے ہیں، آپ نہایت ہی عظیم خداوند ہیں۔ میرے پتا جانتے ہیں کہ میں نہایت ہی نکما ہوں، کمزور ہوں، نالائق ہوں میرے خداوند۔ مجھ میں کوئی حکمت نہیں، مجھ میں کوئی عقل نہیں، مجھ میں کوئی دلائی نہیں میرے خداوند، لیکن آپ کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے، آپ کا کلام ہمیں قوت دیتا ہے، آپ کا کلام ہمیں زور دیتا ہے، کیونکہ آپ کے کلام میں مکتوب ہے کہ قول میں تم نہیں بلکہ باپ کا روح ہوگا۔ اسی کلام سے ہم طاقت پاتے ہیں، اسی کلام سے ہم شیطان پر غالب آتے ہیں میرے خداوند۔ رحم اور فضل کیجئے میرے خداوند، اپنے خادم بندہ کو اپنی حفاظت میں رکھیے میرے خداوند، رسول کے جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت سے نگہبانی کیجئے میرے خداوند، اور صحیح اور سلامتی سے ان کو میرے خدا وہ واپس لے کے آئیے میرے خداوند۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ پلیز تشریف رکھیں۔ ہاللویا، کیا سب خوش ہیں؟ بھائی کسی جگہ پہ بات کرنے کے لیے گئے ہیں، کیونکہ بھائی شاید کی آج چھٹی نہیں تھی تو ان کی جگہ بھائی گئے ہوئے ہیں۔ تو بھائی نے رات مجھے کال کی لیٹ، تو مجھے بتایا کہ میں صبح 9:15 تک آ گیا تو ٹھیک، پھر آپ کلام سنا دیجیے گا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا اور زیادہ ہم انتظار کریں گے کیونکہ آپ آ کے سنائیں۔ تو پھر ابھی بھائی محسن آیا تو انہوں نے کال میں کہا کہ ابو کا میسیج آیا کہ آپ کلام سنائیں کیونکہ میں لیٹ ہوں۔ تو دیکھیں جو خادم ہوتا ہے پہلا درجہ اسی کو دینا چاہیے، تو میں انتظار کر رہا تھا لیکن ابھی وہ لیٹ ہے، تو اس لیے اب کلام میں ہی آپ کو سناؤں گا۔ کیا سب خوش ہے؟ باقی کن کے پاس ہے؟ پردہ کیوں آتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا ہتھیار ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم میدان جنگ میں ہیں، لاسٹ ٹائم بتا رہے تھے ہم میدان جنگ میں ہیں، تو جو فوجی اس کے پاس اپنا ہتھیار ہونا چاہیے۔ فوجی جنگ میں چلا جائے اور ہتھیار نہ ہو تو لڑ سکتا ہے؟ نو، کبھی بھی لڑے گا، بلکہ شیطان اس پہ غالب آ جائے گا، دشمن اس پہ غالب آ جائے گا۔ تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ایک ہتھیار ایک نظر آتا ہے لیکن اس میں بہت سارے اس کے آگے وہ چیزیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں۔ آمین آمین۔ تو یہاں سے جو حوالہ میں نے آپ کے ساتھ پڑھا ہے، بھائی نے پڑھا ہے ہمارے لیے، تو یہاں سے پہلے بھی اس ٹاپک پہ آپ سے بات کی ہے، آج پھر اسی پہ بات کریں گے، ملاقات پہ۔ آمین۔ وہ ملاقات 1 تھی، یہ ملاقات 2 ہے، یعنی کہ پارٹ اس کا۔ تو آج ملاقات پہ ہی بات کریں گے۔ تو آپ نے جو حوالہ پڑھا ہے اس میں دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے ڈیفرنٹ طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یس۔ جو انسان قید خانہ کی حالت میں ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، اس سے بھی لوگ ملاقات کرنے کے جاتے ہیں، بہت محدود ٹائم ہوتا ہے ملاقات کا، پھر وہ آواز آ جاتی ہے کہ آپ کی ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا۔ لیکن ایک ایسی ملاقات بھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ میری اور آپ کی مسیحا کے ساتھ ملاقات، آمین، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آمین۔ وہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تمہاری ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا تو اسی جا سکتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرے پاس آئے، آمین، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے ملاقات کرے، آمین، وہ تو چاہتا ہے کہ مجھ سے رفاقت کرے، آمین آمین آمین۔ ٹائم کی کوئی بندش نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا ہے، ایلیا کے بارے میں یہ حوالہ ہے، یہ کلام، یہ باتیں آپ نے 1000 دفعہ سنی۔ تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر میسج کو جانتے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ پہ غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کیجیے گا، آمین۔ کیونکہ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن جو کہہ رہے کہ ہمارا منزل ہے وہ ایک ہی ہے، آمین، جس منزل کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو یہاں پر ایلیا ہے اور ایلیا سے خدا ہم کلام ہوا ہے کہ جا کے اخیاب سے کیا کر، ملاقات کر، کیا کر، ملاقات کر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں سخت کال تھا اور خداوند نے ایلیا سے کہا کہ اخیاب سے کہہ دے کہ اب کثرت کی بارش ہونے والی ہے۔ کیا ہونے والی ہے؟ کثرت کی بارش ہونے والی ہے، کثرت کی بارش ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے جو اخیاب ہے اور اس کا دیوان، اس کا کیا نام ہے؟ دیوان کا کیا نام ابھی آپ نے پڑھا ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا ہے؟ بھائی 16ویں آیت میں آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ اب دیا۔ دیکھیں آپ کے سامنے بھائی نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، تو پلیز جب آپ چرچ میں بیٹھے ہیں تو پورا دھیان اپنے اس کلام کی طرف رکھیں، آمین۔
ये उसका दीवान था जो उसके साथ साथ रहता था। ये निकले हैं ताकि कहीं जगह पे ना क्या करें, पानी की तलाश करें। क्या करें? पानी की तलाश करें। जब ये कर रहे हैं तो अबियब और जो उसका दीवार है वो अलग हो गया। अबियब जो क्या है वो अलग, उसको तलाश कर रहे हैं पानी को, लेकिन ढूंढते 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 अबिया को एरिया मिल गया। अबिया को क्या हो गया? एरिया मिल गया है। जब आप चीज को ढूंढते हैं, आप कोई और चीज ढूंढने जाते हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी होती है तब आप खुदा को वो दे देता है आपको जो आप ढूंढने नहीं निकलते। आमीन। जब खुदा की मर्जी होती है तो ढूंढ वो पानी रहे हैं, ढूंढ वो पानी रहे, लेकिन मिल गया उसको कलाम। आमीन। मिल गया उसको कलाम, मिल गया। तो कहता है कि जाके अखियब से कह दे कि एलिया यूं फरमाता है, कहता है कि मैं नहीं जाना। अगर मैं उसे बताने चला जाऊं तो हो सकता है खुदा की भी तुझे पता नहीं कहां ले जाए, क्योंकि उसने हर जगह मुझे ढूंढा है। लेकिन मैंने एक कुछ ऐसा काम किया है कि 100 नबियां छुपा के रखे हुए, इनको 50-50 करके मैंने छुपाया, जिनको मैं खाना भी देता हूँ, पानी भी देता रहा हूँ। तो अगर उसको मैंने बता दिया कि एलिया मुझे मिल गया है और तू मुझे ना मिला, तो वो तो मुझे कत्ल कर देगा। क्या कर देगा? कत्ल कर देगा। एलिया से आगे बहुत प्यारी बात कहता है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि अब तू कह कि जाकर अपने मालिक को खबर दे कि एलिया हाजिर है। कह रहे कि अब जाके मैं जाऊंगा नहीं, खुदावंद की याद की कसम, मैं यहीं का यही खड़ा हूं, तो अपने मालिक से कह दे कि एलिया अब हाजिर है। एलिया क्या है? हाजिर है। हाजिर है। तू जो कुछ उतना करना है और भाई कर ले आगे। कहता है एलिया हाजिर है। मालिक को खबर दे कि एलिया हाजिर है, सो तो तुझे मार डालेगा। तब एलिया ने कहा, सो वो तो मुझे मार डालेगा। तब एलिया ने कहा, रब्बुल फाज की है याद की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, मैं आज उससे जरूर मिलूंगा। आमीन। मैं मुझे खुदा की रूह आज कहीं भी लेके नहीं जाएगी। सच है। आज ये कलाम उसके लिए है, आज ये कलाम तेरे लिए है, और किसी के लिए कलाम नहीं है। इसलिए मैं किसी और जगह जाने वाला नहीं हूं, मैं आज यहीं खड़ा हूं। जितनी मर्जी देर में वो आए, मैं यहीं पे यहीं खड़ा हूं। इसलिए हमें बाज़ का चीजों का वेट करना पड़ता है, खुदा का वेट करना पड़ता है। दुआएं थोड़ी लंबी हो जाती हैं। आप पता कि दानियल की दुआएं कितनी देर तक वो जवाब देकर रुका रहा? 21 दिन तक। लेकिन एलिया मुसलसल दुआ कर वेट कर रहा है। तो एलिया ने यहाँ पे एलिया जैसे कहा है कि जाके कह दे कि मैं हाजिर हूँ, अब मैं यहाँ पे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तो जब वो आया है, उसने ऐसी बातें कही आके उस अखियब ने, तो आगे पता क्या कहता है? अब अखियब से मतलब एलिया को देखा तो उसने उससे कहा, ऐ इस्राएल के सुताने वाले, क्या तू ही है? ऐ इस्राएल के सुताने वाले, क्या तू ही है? उस एलिया आगे से क्या जवाब देता है? उसने जवाब दिया, मैंने इस्राएल को नहीं सताया, बल्कि तू और तेरे बाप के घराने ने, क्योंकि तुमने खुदा के हुक्म को तर्क कर दिया है और बलाम की पैरवी की है। कहता मैं नहीं सताया, बल्कि तुम लोगों ने और तुम्हारी बीवी एजबल ने, जो तुमको गलत दिशा में ले गई है। ये कब उसने कहा? जब एलिया की और अखियब की मुलाकात हुई। तो खुदावंद एलिया से हम कलाम हुआ था, और खुदावंद ने जो जो कुछ उसे कहा था, एलिया फिर अखियब से बयान करना शुरू करता है। वो कहता है कि अगर इसलिए आप तुकासित भेजो सारे इस्राएल को, और बाल के 450 और यसीतों के 450 नबियों को एजबल के जो सरकार से जो खाते हैं उनको क्या करे? करमल की झाड़ी पे इकट्ठा कर ले। क्या करे? करमल की झाड़ी पर इकट्ठा कर ले कि आज मालूम हो जाएगा कि किसका खुदा जिंदा है, कौन सताने वाला है, कौन है बचाने वाला है। आज मालूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज मालूम हो जाएगा। आज मालूम होएगा कि एलिया का खुदा सच्चा खुदा है। आमीन। भेद नबी पे वो खोल। आमीन। जो भी कुछ करने को होता है, अपने बंदों पर भेद खोल। आमीन। खुदा जो करने को था उसने एलिया को पहले बता दिया। आमीन। एलिया से हम खराब हुआ था। तो जब वो 450 नबी इकट्ठे हुए हैं, तो एलिया ने वहां की दरख्वास्त की उनसे, क्या नहीं करो, एक बछड़ा मेरे लिए, एक बैल पला होगा, तो पतला नहीं, छोटा नहीं, बल्कि क्या पला हुआ, जरा चंगा मोटा ताजा हो। चंगा आपने बात देखे होगा कि बैल बहुत मोटे मोटे होते हैं, क्योंकि मन उनका वजन होता है। तो वो बैल एक मेरे लिए और एक इन झूठे नबियों के लिए,
ले आओ। और आज खुदा साबित करेगा कि कौन सच्चा है। जो खुदा आग से जवाब देगा वो सच्चा खुदा होगा। आमीन। हमारे जमाने के अंदर भी खुदा ने आग से जवाब दिया। आमीन। जो पिलर ऑफ फायर नबी के साथ आमीन 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 खुदा ने इस बंदे को भेजा था। आमीन। खुदा ने इससे कोई सवाल किया था। आमीन। खुदा से कलाम हुआ था। आमीन। खुदा ने इस राज़ों को खोला था इसने बंदे पे। ये पिलर ऑफ फायर साबित करता है। आमीन। तो कहता कि उनको भी बुला दे। एक बैल उनके लिए, एक बैल मेरे लिए। तो बैलों को क्या करें? ज़बह करें, उसके टुकड़े करें और उसके अपने देवता के आगे, अपने खुदा के आगे क्या करें? दुआ करें। आप सब इस कहानी से वाकिफ हैं, तो फिर मुझे जवाब देते रहे। तो क्या करें? इस बैल को क्या करें? इसके आगे दुआ, जब टुकड़े टुकड़े करके लकड़ी को चुन दिया जाएगा तो क्या करेंगे? इसके आगे दुआ करेंगे। तो जिसका खुदा सच्चा हो वो आग से, आसमान से जवाब देगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने क्या किया है? बैल के टुकड़े टुकड़े किए, लकड़ियों को चुन दिया और शुरू कर दिया अपना विरोध क्या किया? स्टार्ट हो गया। अपनी दुआ क्या किया? Start। अपनी पेशकश क्या किया? शुरू कर दिया। वो खुदा तक नशीन ही नहीं होता वहां पे जो सच्चे खुदा की बात नहीं करता। आमीन आमीन। क्योंकि खुदा से प्रस्ताव ढूंढ कर रूह उसकी प्रशंसा, तो इसलिए हमारा खुदा तो तक नशीन हो जाता है। आमीन। तो क्या करें कि उसने क्या किया कि उनको क्या किया है? उन्होंने क्या शुरू कर दिया? अपना वो नाचना, पीटना, रोना, चलाना। ऐ बाल हमारी सुन, ऐ बाल हमारी सुन। लेकिन कोई बाल होएगा तो सुनेगा ना, उसके तो कहानी नहीं है। वो सुने कहां से? क्योंकि कलाम में लिखा है कि दुनिया के सारे मबूद क्या है? महज बुत है। महज बुत है। ना वो सुनते हैं, उनके कान यहाँ पर सुन नहीं सकते, उनकी आंखें यहाँ पर देख नहीं सकते, आमीन। उनका मुंह यहाँ पर बोल नहीं सकते, आमीन। लेकिन एक जिंदा खुदा है जो सुनता भी है। आमीन 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 आमीन। तेरा एलिया का खुदा है, मेरा भी आपका खुदा है। आमीन। आमीन। प्रेज़ गॉड। तो क्या कर वो फिर एलिया को छुड़ाने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए कहा कि जरा जोर से चलाओ। हाँ। क्या पता वो सोया हो, हाँ जी। मैं भी वो यात्रा में हो, मैं भी शायद रात भर उसने काम किया, आप सो रहा हो, किसी नींद तो नहीं आ रही? ओके, तो फिर सोना नहीं है। ओके, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा वो ना सोता है ना उगता है, ना उसे नींद आती है, वो हमेशा जागता है। तो कहता मैं भी वो यात्रा में हो, यानी कि सफर में हो, उन्हें थोड़ा खिलाओ, थोड़ा झंझोड़ो। आज भी घर से कोई बंदा सुता ना उठता ना है तो फिर उनसे झंझोड़ा जाता है, भाई उठो। लेकिन वो तो सोया हुआ, वो कहाँ उठने वाला है? जितना मर्जी झंझोड़ दो, जितना मर्जी ठंडा पानी पालो, उठते जो मर्जी कालो, चाहे पखा बंद कालो, चाहे गर्मी में कर, उन्हें नहीं उठना, क्योंकि वो है ही नहीं। हाँ जी। एलिया ने बड़ा कहा कि और जोर से चलाओ, लेकिन कहाँ चलाए? जितना मर्जी उन्होंने अपने आप को लहू लहान किया है। कलाम पढ़ के देख ले, क्या किया? अपने आप को लहू लहान किया है। देखिए खुदावंद तो आंसू पे आ जाता है। आमीन। वो अपने को लहू लहान कर रहे हैं, आंसू बहा कर देखे सच्चे दिल से, खुदावंद आ जाता है। आमीन आमीन। वो आपके आंसू पूछ लेता है, ये मेरा बाप कैसा खुदा। तो कहता है कि वो सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे है बाल हमारी सुन, पर ना कुछ आवाज हुई, ना कोई जवाब देने वाला था। और वो मजबा के चुके क्या गेंद पर बनाया गया था, कूदते रहे, जितना मर्जी कूदते रहो, जितना मर्जी जितना मर्जी नाचते रहो, लेकिन वो सुनने वाला नहीं। लेकिन दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चढ़ा कर कहा, बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है, वो किसी सोच में होगा। हाँ। कहना किसी सोच में होगा, किसी और सोच में होगा, लेकिन खुदावंद की आंखें तो हम सब पर लगी। आमीन। वो किसी और सोच में नहीं होता, वो ये देख रहा है मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, ये क्या मांग रहे हैं, इनको किस चीज की जरूरत है। हाँ। आमीन। वो तो ऐसा खुदावंद हमने पाला है। जो कहता है वो किसी खलवत में है या किसी सफर में होगा, या शायद सोता हो, जरूर है कि वो जगाया जाए, तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे, अपने दस्तूर के मुताबिक अपने पशुओं और निस्लों से घायल किया लिया, यहाँ तक कि लहू लहान हो गए, लेकिन कोई जवाब ना आया। लेकिन कोई तवज्जो करने वाला, कोई आवाज सुनने वाला हो तो आप कहना भाई। आप देखें
आप बियाबान में या जंगल में किसी को आवाज देते रहे, फर्ज करें किसी नाम लेके, जब वो हो गई तो आपकी आवाज कौन से सुनेगा? हाँ जी। क्या सुन सकता है? लो। हाँ, इस चर्च में आप जिसके भाई का बैत का नाम है, भाई बैत का जी, भाई सलमान का सबूल का इसका नाम है, भाई जुनेद का नाम है, और किसी का नाम है तो आगे से कहेगा हाँ भी, हाँ जी। और मैं इधर बैठा हूँ, मैं इधर मौजूद हूँ। तो वो शाम क्या कहते हैं, आवाज देते रहे, लेकिन उनका देवता सुनने वाला नहीं है। हाँ जी, है ही नहीं। क्यों? सुने कहाँ से? है ही जिस चीज का वजूद नहीं है वो कहाँ से सुनेगा? यस। आमीन। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा मेरे नजदीक आ जाओ। कहता हुन मेरे नेड़े आ जाओ, दूर दूर मत रहो। पहला तो 400 नबी कूद देता था ना, हुन एक ही खड़ा हो गया। आमीन। कहता कि मेरे नजदीक आ जाओ। उन्होंने कहा मेरे नजदीक आए, मेरे कोल आ जाओ, दूर ना रहो मेरे को। मेरा नाम आपका खुदा ऐसे कहता है कि मेरे कोल आ जाओ, मेरे नजदीक आ जाओ, मुझसे दूर न रहो। तब एलिय्याह सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चुनांचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था क्या किया है? मरम्मत किया है। और एलिय्याह ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदावन का ये कलाम नाज़िल हुआ था, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर दिए। और उस मज़बा पर मज़बा जो ढा दिया गया उसको मरम्मत किया, 12 पत्थर दिए गए हैं। क्या कर रहे हैं? जिस चीज का खुदावन ने कहा था एक नबी को, नबी वैसे ही कर रहा है। तो क्या हमारे जमाना के अंदर नबी को जो जो कुछ कहा गया है, जो कुछ करने को कहा गया, नबी ने वैसा ही नहीं किया? वैसे ही किया ना? खुदा कभी नहीं बदलता, उसका पैटर्न कभी नहीं बदलता, जो नबी होता वो भी कभी नहीं बदलता। आमीन। वो खुदा ने नबी से एलिय्याह से कलाम किया, नबी ने वैसे ही किया। हमारे जमाने के अंदर वो खुदा ने नबी से कलाम किया, नबी ने वैसे ही किया। आमीन। आमीन। तो जब आगे करने वाला वैसे ही ताबेदार होगा तो खुदा फिर उसकी आवाज को सुनता है, उसकी फरियाद को सुनता है, उसकी इल्तिजा को सुनता है। तो उसने उन पत्थरों से खुदा के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीज की समाई थी। देखो पहले जो बाल के पुजारी थे उन्होंने खाई नहीं खोदी थी, हाँ जी। उन्होंने वैसी लकड़ियों पे अपना बैल रख लिया था, लेकिन इसने गहरी खाई खोदी है। क्या किया है? गहरी खाई खोदी है, और लकड़ियां उस पर चुनती हैं, और जो मटका था यानी कि जो बैल था जिसके टुकड़े टुकड़े किए गए वो लकड़ियों पे रख दिया गया है। तो क्या किया उसने? कहा कि 4 मटके इस पे क्या करो? पानी। 4 मटके इस पर पानी डाल। जब उन्हें 4 मटके पानी दिए उसने क्या किया? फिर क्या कहा? 4 होल पा दो। क्या करो? 4 होल रोड दो थी। उन्होंने फिर किया, कितने हो गए? 8। हाँ जी। फिर ने कहा फिर पाओ, फिर कितने हो गए? 12। ओ भाई 12 कबीले, आमीन। 12 पत्थर। आमीन। ये कोई आम की बात नहीं, 12 शागिर्द। हाँ जी। आमीन। तो ये उसने ऐसा जब किया तो पानी लबालब उसके पानी के ऊपर से बह रहा है। हाँ। पानी में वो तर है, लकड़ियां तर हैं, वो बैल जो ज़बह किया गया वो तर है, हर एक चीज पानी में। क्या पानी में कुछ हम लोग आग लगा सकते? नो। लग सकती है? लग सकती है? नो। पानी में आग नहीं लग सकती। लेकिन यहाँ जो वो कर रहा है खुदा के हुक्म के मुताबिक कर रहा है। फिर उसने कहा, यानी कि सारा कालो शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिय्याह नबी नजदीक आया। उसने कहा ऐ खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इसराइल के खुदा, प्रेज गॉड। इस पर हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है। आमीन। मैं तेरा बंदा हूँ। आमीन। आमीन। मैं और आपके ज़माने के नबी ने कितनी दफा ये कहा है कि आज साबित हो जाए कि तू ही खुदा है। ये 10 से दलाल है, ये जो मैं करूंगा तूने मुझे कहा है। आमीन। वही बातें दोहराई जा रही है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। ये कब हो रहा है? जब एलिय्याह की और रबिया की एक मुलाकात हुई। आमीन। आज मालूम हो जाए कि सर में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं। मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ऐ खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ऐ खुदावंद तू ही खुदा है और तूने फिर इनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई और उसने उस अपनी कुर्बानी को, लकड़ियों को, पत्थरों को मट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को खाई में जो था चाट लिया। ये है मेरा और आपका खुदावंद। फिर जितने उठे समय देखना रहे सब लोग दिल में सब नूर हो गए। फिर एलिय्याह का जिंदा खुदा मुबारक हो। आमीन।
एलिया का खुदा मुबारक हो, बैरम का खुदा मुबारक हो, जो आज भी हमारे साथ साथ चलता है, जो आज भी हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन जरूरत हमें है कि हम उससे मुलाकात करें। आमीन। मुलाकात, ये मुलाकातें जो सवा की मलका थी, आप जानते हैं कि उसने अपने मुल्क में जो सुलेमान की शोहरत सुनी हुई थी, क्योंकि लोग सुधारी करने के लिए तो जाते थे, और उसने सुलेमान की शोहरत सुनी थी और वो बेताब थी ताकि सुलेमान से क्या करे, मुलाकात करे, उसको देखे, उसके कामों को देखे, उसकी शोहरत को देखे, उसके बातों को सुने जो वो करता था। तो कितने दिन की उसने सफर किया? 3 माह का। कितने माह का? 3 माह का। देखें, उसके दिल में ये बात थी कि मैं उससे मुलाकात करूंगी। उसने मुलाकात करने के लिए कोई सफर की परवाह नहीं की, वो रेगिस्तानों की परवाह नहीं की, वो भूख और प्यास की परवाह नहीं की, लुट जाने की परवाह नहीं की, बल्कि क्या कि जब उसने ये इरादा कर लिया मुलाकात का, तो वो उस इरादे पे क्या रही है? कायम रही है। क्या रही है? कायम रही है। जब वो फिर उससे मुलाकात करने के लिए आई है, जब उससे मुलाकात उसने जब आके देखा है, तो क्या देखा उसने? आए, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ये पहले सलातीन में है। जब उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई थी, बहुत सारे मसाले लेके आई थी। जब वो सुलेमान के पास पहुंची, तो उसने उन सब बातों के बारे में जो उसके दिल में थी, उससे क्या की है? गुफ्तगू की है। कब? जब उसकी मुलाकात सुलेमान से हुई है, सवा की मलका की, धक्कन की मलका की मुलाकात सुलेमान से हुई है, तो उसने जितनी बातें उसके दिल में थी, उन सब बातों की उसने क्या किया? जवाब दिया, गुफ्तगू की है, बातचीत की है। तो हमारे दिल में जितनी बातें होती हैं, हम बात लोगों से शेयर नहीं कर सकते। जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, उससे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम जब खुदा से मुलाकात करते हैं, तो वो हमारी बातों को तो पहले से जानता है, हमारी बातों को पहले से जानता है, हमारे ख्यालों को पहले से जानता है कि मेरी बेटी किन किन चीजों की मोहताज है। प्लीज थोड़ा आगे हो जाए, क्योंकि जो बहनें बहनें बाद में आ रही हैं, उनको जगह नहीं मिल रही। प्लीज आगे हो जाए, ईमानदारी के साथ। अरे बहन आगे हो जाए प्लीज। तो उसने जब मुलाकात किया, तो सुलेमान ने उसके सब सवालों का क्या किया है? जवाब दिया। सारे सवालों का, जितने भी उसके सवाल थे, हर एक सवाल को उसने जवाब दिया। बादशाह से कोई बात ऐसी पोशीदा ना थी जो उसने बताई ना, कोई भी ऐसी होती कि कोई दिल की बातें भी उसने बताई थी। आप जानते हैं कि उसके दिल की बातें भी बताई गई थी, क्योंकि खुदावन ने सब कुछ उसे बता दिया। यस भाई, क्योंकि खुदावन ने उसने शोहरत नहीं मांगी थी, दौलत नहीं मांगी थी, बल्कि फहम, हिकमत और दनाई मांगी थी। तो जब ये सारी चीजें मांगी, तो खुदावन को पसंद आया उसने। उसने कहा, ये तो मैंने दिया, बाकी चीजें भी सारी तुझे देता हूँ। ये मेरा और आपका मेहरबान खुदावन है, ये मेरा और आपका महान खुदावन है, जो हमारे मांगने से पहले देता है। सुलेमान ने उससे सब सभा की मलका, सुलेमान की सारी हिकमत, उसके महल को जो उसने बनाया था, उसकी दस्तरखान के नेमतों, उसके मलाजमों की नशिस्तों, उसके खानों की हाजिरबाशी और उनकी पोशाक और उसकी साथियों और उसकी सीढ़ियों को, जिससे वो खुदावंद के घर को जाता था, देखा तो उसके क्या हुए हैं? होश उड़ गए। किसके? क्योंकि सारी अकल और दनाई किसने दी थी? खुदा ने दी थी। किसको? सुलेमान को। तो उसने जो कुछ भी किया था, खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया था। तो ये जब सब चीजें उसने देखी, तो उसके क्या हुए हैं? होश उड़ गए हैं। उसकी अकल दंग रह गई है। तब जब उसने सुलेमान से मुलाकात की। यस, खुदावंद से मुलाकात जरूरी है। आमीन। एक मुलाकात है, जरूरी है। तो क्या कहती है कि उसके होश में उसने बादशाह से कहा, वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी। yes. तो भी मैंने वो बातें बार-बार न की, जब तक खुद आकर अपनी आंखों से ये देख न लिया जो मुझे तू वो कहती कि मुझे तो दस जाएगा मुझे तो आधा बताया गया था, लेकिन आके मैंने अपनी आंखों से पूरा देख लिया है। मैंने जब तुझसे मुलाकात किया तो मैंने वो सब चीजें देख ली है जो खुदावंद तेरे साथ साथ। आमीन आमीन। तेरे मुलाजमों की नशिस्त अजीब है, उनका लिबास अजीब है, उनका खड़े होना अजीब है, तेरा सीढ़ियों पे चलकर खुदावंद के घर की तरफ जाना अजीब है। कि मैं खुश हो जब मैं खुदावंद के घर, जब मुझे कहना कि आओ खुदावंद के घर चलें, तो फिर हमारी चाल डिफरेंट हो जाती है। आमीन। तो कह रहे कि मेरे होश उड़ गए और तो मुझे याद भी नहीं देखूंगा तेरी हिकमत और बालमंदी उस शोहरत से जो मैंने सुनी बहुत ज्यादा है। कह दिए कि अब
लेकिन अब तो उसने बता दिया कि मैंने आधी भी नहीं सुनी। अब वो आगे से सुलेमान बादशाह की तारीफ कर रही है। किसकी तारीफ कर रही है? सुलेमान बादशाह की, क्योंकि खुदा उसके साथ था। ये उस मुलाकात में हुआ। उसने कहा खुश नसीब है तेरे लोग और खुश नसीब है तेरे ये मुआजिज जो बराबर तेरे हुजूर खड़े रहते हैं और तेरी हिकमत सुनते हैं। खुदावंद तेरा खुदा मुबारक हो जो तुझसे ऐसा खुशनुमा हुआ कि तुझे सेहत के तख्त पर बिठाया है। क्योंकि खुदावंद ने इसराइल से सदा मोहब्बत रखी है, इसलिए उसने तुझे अदल और इंसाफ करने को बादशाह बनाया। कहते मुबारक हो तुम्हारा खुदावंद। क्या हमारा खुदावंद मुबारक खुदावंद नहीं है? हमारा खुदावंद तो मुबारक खुदावंद है भाई। आमीन। गैर कौमें भी मानेंगी कि उनका खुदावंद मुबारक खुदावंद है। जब गैर कौमों में बनी इस्राएल की शरत पहुंची थी ना, तो उनके दिल धड़क चुके थे, डर गए थे। जब वो जसूस भेजे थे उन्होंने बताया था हमने तेरे खुदावंद की शरत सुनी है, उसके कामों को सुना है, तो खुदावंद ऐसा खुदावंद है, ऐसा अजीब और मशीर खुदावंद है। ये मेरा और आपका खुदावंद है, लेकिन हमें उससे मुलाकात जरूरी है, क्योंकि जब मुलाकात होती है तो फिर हम देखते हैं। तो एक और मुलाकात को मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पे एक बल्कि 3 औरतें हैं। कौन है? 3 औरतें हैं। एक उनकी सास है और 2 नुआन। एक सास से 2 नुआन है। एक नूह जड़ी है और दुनियादार में ताल्लुक रखती है, लेकिन एक नूह जो है उसने मुआशरा से वाकिफ हो चुकी। आमीन। आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? हालेलुया। आप लूत की तस्वीर से वाकिफ हैं कि लूत को? आमीन। आप नोबी से वाकिफ हैं कि नोबी किसकी तस्वीर? यस आमीन। आमीन। क्योंकि ये बातें आपने बहुत दफा सुनी है। आमीन। तो इससे पहले कि लूत की और बोअज की मुलाकात हो, उससे पहले उसने अपनी सास के साथ कुछ कहा, उसे कुछ किया उसके साथ। तो मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहता हूँ, बेशक आपने ये बात सुनी है। तो रूत ने कहा तुम मन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं, तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। आमीन। लोग मेरे लोग होंगे, आमीन। खुदा मेरा खुदा होगा। आमीन। तू मरेगी मैं मरूंगी, दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा करे अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझे तुझसे जुदा करे। कि जो तेरा खुदा होगा मेरा खुदा होगा, जरा तेरा नबी होगा मेरा नबी होगा। आमीन। आमीन। ये है रूत की बातें, क्योंकि रूत को मुकाशफा मिल चुका था। आमीन। कि अब कुछ होने वाला है। आज की दुल्हन को भी एक मुकाशफा मिल चुका है कि अब कुछ होने वाला है। क्यों होने वाला हूँ? रैप्चर होने वाला है, शोभन मिलने वाला है, ये लेके आने वाला है। आमीन। आमीन। तो ये जब बातें हो चुकी उसको उसके साथ अपने ले गई है, लेकिन दूसरी उसकी जो बहू है वो पीछे चली गई है, क्योंकि उसकी नजर अपनी और चीजों पे थी। लेकिन आज की दुल्हन की नजर किस पे है? एक मुकाम को हासिल करने। आमीन। हासिल करने से है कि नहीं है? है ना? तो जब हासिल करने पे है तो फिर उसके साथ साथ चलना शुरू हो। अभी क्या कर रही है? फिर अभी उसने एक काम किया है कि अपनी सास को घर में बैठाया है और खुद काम के लिए निकल पड़ी है। कौन? रूत। क्या ढूंढने के लिए? अनाज ढूंढने के लिए। क्या ढूंढने के लिए? अनाज ढूंढने के लिए। आज आपके पास बहुत सा अनाज है। आमीन। है कि नहीं है? घरों में पड़ा हुआ है, चर्च में पड़ा हुआ है, आपके बैगों के अंदर है। आमीन। तो ये अनाज ही है। आमीन। जो किसके वसीले मिला? कि नबी के वसीले। आमीन। क्योंकि नबी ने वो अपने पास से नहीं बल्कि जो खुदावंद ने से दिया उसको। आमीन। 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 तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्या करने चली गई है? बालियां चुनने के लिए चली गई है। तो जब वो बालियां चुनने के लिए गई है तो किस खेत में चली गई है? बॉयज के खेत में। और सीधा अपने शोहर के खेत में चली गई। जो शोहर उसका होने वाला था उसे तो नहीं मालूम था, ना बॉयज को मालूम था, लेकिन खुदा जानता था। देखिए बात का हम इरादा और करते हैं, ख्याल और करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं खुदा जिस तरह नदी और नालों के रुख चेंज कर देता है, इस तरह इंसान का ज़हन भी वो चेंज कर देता है। इंसान के इरादे चेंज कर सकता है, इंसान के ख्यालात चेंज कर सकता है, इंसान की बातें चेंज कर सकता है। कौन? मेरा और आपका खुदावंद। आमीन। तो खुदावंद सीधा उसको उस बॉयज के खेत में ले गया। उसने क्या किया? वहां से बालियां चुनना शुरू कर दी। क्या किया उसने? बालियां
चुने सुने के समय गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालियां चुने लगी और इत्तेफाक से वो बॉयज के खेत में हिस्सा में पहुंच पड़ी। कहते कि बॉयज ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। उन्होंने से जवाब दिया, खुदावंद तुझे बरकत दी। फिर बॉयज ने अपने उन नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? भैया आज कोई नहीं मालूम हो रही है मुझे, नहीं मालूम हो रही है ये किसकी लड़की है। उस नौकर ने क्या कहते कि ये वो मोआबी लड़की है जो नोमी के साथ मोआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझे जरा काटने वालों के पीछे पोलियों के पीछे बालियां चुन को जमा करने दे। सो आकर सुबह से अब तक यही रही, वक्त जरा सी देर घर में ठहरी है। कहते कि उसने जब उसे बताया तो फिर उसने आगे से बातें की हैं। फिर आगे से वो कहता है कि तू मेरी छोकरियों के साथ ही चुनना, इधर उधर ना जाना। देखे जब खुदावंद मेहरबान होता है ना, Praise आपके राहें और रास्ते खोलता है। आमीन। जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद Praise God. उसके दुश्मनों को इसका दोस्त बनाएगा। आमीन। ये मेरा और आपका महान खुदावंद है। तो काटने वाले तेरी आंखें जमी रही, कहते कटन और तू इन ही के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन नौजवानों को हुक्म नहीं किया कि तुझे ना छुएं? और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। देखें कैसा महान खुदावंद है, एक बंदे को मेहरबान कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सास के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। आज भी जरूरत है कि आज ही बहू अपनी सस बड़ा अच्छा सलूक करे। ये कर दे कि नहीं कर दे? भाई कर दो कि नहीं कर दे? है कोई हंसना दे, चेहरे को दाग दे मेरे। लेकिन मेरे अजीजों, हमें बाइबल में पैटर्न मिलता है। रूथ ने नोमी की खिदमत की। वो जा सकती थी, उसे छोड़ सकती थी, लेकिन उसने उसकी खिदमत की, उसके साथ साथ चल रही है, उसे तनहा नहीं छोड़ दी। आमीन। उसके अनाज इकट्ठा करने के लिए, उसकी खुराक के लिए उसके खेतों में चली गई। लोग क्या कहेंगे? इसकी परवाह नहीं की उसने। दुनिया में कहेंगे इसकी परवाह नहीं की, बल्कि क्या किया? हवाइयां छोड़ने के लिए चली गई। किसके लिए? वो जानती थी कि मैं और मेरी सास ही रहना, हम इसी से गुजर बसर करेंगे। क्या उसी बर्तनों में से पीना था। वो उधर वो गिरी और जमीन पर सरकू होकर उससे कहा, क्या भाई से कि तू मुझ पर करम की नजर कर, मेरी खबर लेता है हालांकि मैं परदेश हूं। अभी बॉयज ने उसे जब उसने कहा है किया कि मेरे उन पानी में से पीना, इन छोकरियों के साथ रहना और काटने वालों के पीछे पीछे चलना, तुम्हारी नजरें जमी रहे। और आज भी दुल्हन की नजरें जमी रहनी चाहिए, आमीन। कलाम पर लगी रहनी चाहिए, उसकी नजर इधर उधर नहीं होनी चाहिए। Yes. आमीन। तो जब ये बातें करा तो फिर उसे कहते तू मुझे ना इतनी मेहरबानी क्यों करना पे है, तू मुझ पे इतना मेहरबान क्यों रहा है? बोझ उसे जवाब दिया, जो कुछ तूने अपने खावन के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है। हाँ जी। जो तूने अपनी सास के साथ किया गया है उसकी इच्छी पिच्छी मुझे बताई गई है कि तुमने बीमारी की हालत में अपनी सास के साथ कैसा सलूक किया है, उसको पानी ठंडा दिया या गर्म दिया है, ये सब मुझे बताया गया है। इस वजह से तो वो कह रहा है कि तू उसी पानी में से पीना। उस पर इसलिए मेहरबान हो रहा है, उसमें कोई इतनी खूबसूरती नहीं थी कि उसको मेहरबान हो, बल्कि वो इसलिए मेहरबान हो रहा था कि वो अपनी सास के साथ वफादार थी। आमीन। पूरे तौर पर बताया गया कि तू कैसे अपने माँ बाप और ज़रबुल को छोड़कर उन लोगों में जिनको तू पेशकश न जानती थी आई, खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके पैरों के नीचे तू पनाह के लिए आई है तो उसको पूरा अजर मिलेगा, और उसको पूरा अजर मिला है। जब उसकी रूथ की मुलाकात बॉयज से हुई है, फिर खुदावंद उसके राह और रास्ते खोलना शुरू किए, फिर उसके औलाद भी मुहैया किया गया, फिर उसके लिए शोहर भी आ गया, फिर उसका दाम चुकाया गया। कब? जब उसकी मुलाकात बॉयज के साथ हुई है। आमीन। आमीन। क्योंकि नबी ने कह दिया कि जो कुछ हो तेरा नाम, तू बेफिक्र हो जा, और तेरा नाम वही चुकाएगा। आमीन। इसलिए दुल्हन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दाम चुकाया जा चुका है। आमीन। आपके दूल्हा ने आपका दाम चुकाया। आमीन। आमीन। वो दूल्हा जिसने आपका दाम चुकाया गया, वो दूल्हा आपको लेने के लिए आने वाला है। आमीन। खुदावंद मुबारक खुदावंद, खुदावंद महान खुदावंद। आमीन।
ये कब हुआ, कब उसने अपने शोहर को पाया? जब उसकी मुलाकात बोअज के साथ हाँ हुई। जी। कब उस पे मेहरबानी हुई? जब उसकी मुलाकात बोअज के साथ हुई है। जी। कब उसने नाज इकट्ठा किया? जब उसकी मुलाकात बोअज के साथ हुई है। आमीन। ये सब एक मुलाकात का नतीजा है। यस। आमीन। तो इसलिए मेरा और आपका खुदावंद महान खुदावंद है। तो एक और चीज देखते हैं मुलाकात को। यहाँ पे यूहन्ना की इंजील में उसका पहला बाब भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या तुम कह सकते हो? लीजिए प्रेज द लॉर्ड, जोरदार कहो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सोते रहो प्लीज, जागते रहे। तो यहाँ पे फिलिप्पस और नतनएल की मुलाकात हुई है। क्या हुआ है? फिलिप्पस और नतनएल की मुलाकात हुई है। फिलिप्पस और नतनएल की क्या हुई है? मुलाकात हुई है। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा, जिसका जिक्र अभी क्या कर रहा है? फिलिप्पस किससे बात कर रहा है? नतनएल से बात कर रहा है। उससे मिलकर उसने कहा, जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है, वो हमको क्या हुआ है? मिल गया। मिल गया है। वो हमको क्या हुआ है? मिल गया। मिल गया है। और यूसुफ का बेटा यीशु नासी है। अभी देखिए, नतनएल ने उससे कहा, क्या नासर से कोई अच्छी चीज है? निकल सकती है। निकल सकती है। अब जिसका जिक्र हम पढ़ते आ रहे थे, हमें उस वक्त समझ नहीं थी। ठीक है, क्या पढ़ते थे हम? मुनाकी पढ़ते थे, मुकाशवा 10:7 पढ़ते थे। हमें तो खबर नहीं थी। फिर एक वक्त आया कि हमें पता चल गया कि जिसका जिक्र हम पढ़ते आ रहे थे, जिसका जिक्र हम सुनते आ रहे थे, वो कोई और नहीं है, वो ये है। आमीन, आमीन। तो इसलिए जब फिलिप्पस के नतनएल की मुलाकात हुई है, तो उसने कहा, क्या कि हमें वो मिल गया जिसका जिक्र हम सुनते आ रहे थे? नबियों ने जिक्र जिसका सुना, मूसा ने बताया था, उसका तो वो हमें मिल गया। वो कहता है कि नासर को अच्छी चीज निकल सकती है। क्या कैंटी किसी को अच्छी चीज निकल सकती है? यस। और निकल सकती है। आमीन। वो नासर से कौन निकला? यीशु नासरी, जिसने अपने नाम का पुकारा दिया। और कब किसे कौन निकला? आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ये वो चीज निकली है जिसने मेरी और आपकी मुलाकात करवाई। आमीन। जिसने हमारी शादी पक्की करवा दी। आमीन, आमीन। ये जब लोग सीधे गिन चुको, कोई क्या गीत गाती है बेटी? आज ऐसी आम इंसान लग रहा है, लेकिन हम आम इंसान है नहीं। आमीन। आप अपने आप को आम इंसान मत समझिए। यस। आमीन, आप खास लोग हैं। आमीन। आप खास हिस्सा हैं। आमीन। तो जब ये मुलाकात हुई है, तो कहता है नासर में अच्छी चीज निकल सकती है। फिलिप्पस ने कहा, भाई निकल सकती है, तू चल के अभी नहीं आ गया। यस। वो चीज अच्छी है बुरी है? तो फिर लोगों ने देखा नहीं, जो कैंटी से चीज निकली, तो पूरी दुनिया ने देखा कि वो चीज अच्छी थी या बुरी थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नसीब, उसके अंदर मेरा और आपका खुदावंद। तो जिसके अंदर मेरा और आपका खुदावंद हो, क्या वो बुरी चीज हो सकती है? हो नहीं सकती। आमीन, आमीन। तो खुद जाकर देखना भाई। फिलिप्पस ने कहा, चल कर देख रहे। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसकी हक में कहा, देखो ये फिर हकीकत इसराइली है। देखो अभी मुलाकात हुई नहीं है, अभी सिर्फ देख रहा है। वो जेड़ा कहता सी कि नासर अच्छी चीज निकल सकती है, जो कह रहा था कि नासर अच्छी चीज निकल, वो जो अच्छी चीज है वो क्या कह रही है दूर से? ये फिर हकीकत क्या है? इजराइली है। इसराइली है। ये क्या है फिर हकीकत है? इसराइल। इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? कहता, तू मुझे कहां से जानता है? तो मेरे और आपके जमाने के नबी ने जब दिलों के हाल बताना शुरू किया, प्रेज गॉड, जब बताया कि तेरा मकान फलानी जगह पे है, ओ हालेलुया, कहां से आई है, तेरे घर का नंबर ये है, तू बचपन इस बीमारी में मुब्तला है, तू यहाँ से गिरी थी, तू यहाँ नीचे आई थी, एवरीथिंग जब बताता था तो कौन बताता था? खुदा बता। आमीन। तो यहाँ भी वो बता रहा है कि ये दर हकीकत इसराइली, इसमें मकर नहीं है। नतनएल से कहा, तू मुझे कहां से जानता है? भाई तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उससे जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा।
नतनेल ने उसको जवाब दिया, ऐ रब्बी तू खुदा का बेटा है, तू शेर का बादशाह है। फिर उसने जाना कि वाकई जो चीज की ये कह रहा था ये वाकई अच्छी चीज है। फिर वो कहते थे वाकई आप एलिया है। पहले जमाने के नबी को भी ऐसे कहा गया, वाकई खुदा ने आपसे कलाम होता, वाकई आप एलिया, वाकई आप नबी हैं। कब? जब उनके हाल बनाए जाते थे, जब उनकी बातें बताई जाती थी, जब उनकी गलतियां बताई जाती थी। तो मेरे और आपके ज़माने के नबी ने जब ये चीज़ें की तो वो क्या था? जाहिर कर रहा था कि खुदा उससे। मैं चाहता हूँ कि भाई अकबर प्लीज आगे आ जाए, मेरी स्टोरी नजर अभी पड़ी है। तो ये चीजें हैं, ये कब हुआ? जब उसकी मुलाकात हुई, जब उसकी मुलाकात हुई है। तो अभी ये तो चीजें और मुलाकात की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं शॉर्ट डाउन टाइम है। तो वो क्या है कि जब ये मुलाकातें, और भी बाइबल में बहुत सी मुलाकातें हैं, आप देखते जाए तो मुलाकातें बढ़ती जाएंगी। तो अभी मैं एक दो मुलाकात के बारे में बताता हूँ आपको, जो मेरे और आपके जमाने का नबी है। जब जमीन पे ये खिदमत सर अंजाम दे रहे थे तो लंबी लंबी कतारें होती थी, दुआ के लोग आते थे इनसे मिलने के लिए, इनसे मुलाकात करने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बहन, आप जानते हैं कि कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है। वो खतरनाक है कि नहीं है? वो खतरनाक बीमारी है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक दिल का कैंसर है। सबसे ज्यादा खतरनाक है दिल का कैंसर है। एक बहन थी, वो जब मेरे और आपके जमाने के नबी से मुलाकात करने के लिए, दुआ कराने के लिए आ रही है तो बहुत ज्यादा बीमार है। जब उसको पेड़ लाइन में लेके आ रहे हैं तो बार बार गिरती है, बेहोश होती है, मरने की हालत पहुंचती है। तो वो आगे से एक जवाब देती है कि बहन, वो लोग जो उसको लेके आते कहते अगर मर गई तो हम तेरा क्या करेंगे, क्योंकि जब मरने से पहले ही या तू उसके पास ना जा सके तो हम क्या करें। उसने आगे से एक बात उनको कही कि अगर मैं इस लाइन में मर भी गई, अगर मैं इस लाइन में मर भी गई तब भी मेरी मरी हुई बात उस नबी के पास ले जाना, उस शख्स के पास ले जाना। हालेलुया। जब ये ऐसा ही हुआ, जैसे उसने कहा था वैसा ही हुआ। वो बेल लाइन में मर गई है। बेल लाइन में क्या हुआ है? मर गई है। मुलाकात करने के नबी से आई है तो वो मर चुकी है, लेकिन जो ही उसकी मैयत मरी हुई नबी के पास पहुंची है तो नबी ने फिर दुआ की है वहां भी कि खुदावंद इसके ईमान को देख, किसने ईमान रखा है कि अगर मैं मर भी गई तब भी मेरी मरी हुई बॉडी उस नबी तक ले जाना, उस बंदे तक ले जाना जिसमें से होकर खुदा बात करता है। तो खुदावंद इसके ईमान को परख और इसके ईमान के मुताबिक जवाब दे। तो उसका नाम था बहन हैटी विल ड्रॉप, आई थिंक उसका नाम था। तो जब नबी ने दुआ की है तो बहन जिंदा हो गई। ये क्या हुआ? ये मुलाकात क्यों हुआ? हालेलुया। जब एक औरत ने नबी से मुलाकात की है तो इसी तरह एक शख्स है जो बैसाखियों के सहारे चलता है, जो बैसाखियों के सहारे चलता हुआ आ रहा है और उस नबी से मुलाकात करना चाहता है, उस खुदा के बंदा से मुलाकात करना चाहता है, लेकिन क्या कर रहा है? बैसाखियों के सहारे आ रहा है। जब वो बैसाखियों के सहारे लाइन में आ रहा है तो लोग, ये बातें हमने पहले भी सुनी है, तो लोग उसको देख रहे हैं और जो पहले वाले थे, जो आशीष थे, उससे पूछते भाई ये तेरे पास एक डब्बा है, इस डब्बे का तू क्या करेगा? तुम तो बैसाखियों के सहारे, तो डब्बे की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा इस डब्बे की मुझे जरूरत है। इस डब्बे में क्या है? उसने कहा इस डब्बे में नए जूते हैं। पर तू तो बैसाखियों के सहारे चलता हुआ है, तो डब्बे में जूते हैं, तुझे जूतों की क्या जरूरत पड़ गई? उसने कहा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जिससे मुलाकात करने के लिए आया हूँ, मैं जब उस तक पहुंचूंगा वो मेरी दुआ करेगा तो उन्हें फिर जूतों की जरूरत पड़ेगी। ये मेरा और आपका खुदावंद है। तो इसलिए जो वैसा ही हुआ जब वो नबी के पास पहुंचा है, जब उसकी मुलाकात नबी से हुई है तो फिर उसकी बैसाखियां छूट गई, फिर उस बोझ के जो जूते थे फिर उसकी जरूरत पड़ गई। आमीन। ये कौन है? ये मेरा और आपका खुदावंद, जो मेहरबान खुदावंद, सिर्फ मुलाकात की जरूरत है। एक बच्ची है छोटी, ये दुआएं हैं ताकि आप थोड़ा सा मजबूत हो सके। आमीन। ये दुआएं कोई आम दुआएं नहीं है। आमीन। ये हकीकत मबनी है।
हकीकत में मबनी है कि नहीं है? आमीन क्या जो नबी ने काम किया वो हकीकत में मबनी नहीं है? आमीन। तो ये मेरे और आपके नबी ने किए हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम की मीटिंग चल रही थी जो 7 दिन और 7 रातें थी। कितने? 7 दिन और 7 रातें। आखिरी वक्त चल रहा था, आखिरी मीटिंग चल रही थी, रश बहुत ज्यादा था। रश कितना था? अनगिनत रश जिसे कहते हैं। ब्रदर ब्रैनम की मीटिंग में वैसे बहुत ज्यादा रश होता था। हाँ जी लोग शफात के लिए आते थे, मोहजात के लिए आते थे, तो रश बहुत ज्यादा है। ब्रदर ब्रैनम तक पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन बल्कि है। मुमकिन है। आई थिंक मुझे दूसरा माइक दीजिए, माइक थोड़ा सा खराब करें। तो ब्रदर ब्रैनम तक पहुंचना क्या था? नामुमकिन था। तो जो ही वो लड़की एक हालेलुया ब्रदर ब्रैनम तक पहुंचना नामुमकिन था। नामुमकिन है। रश बहुत ज्यादा है, लेकिन आप गीत गाते हैं कि फक्त ईमान रखो, सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है। आमीन आमीन। फक्त ईमान रखो, सब कुछ मुमकिन है। जब आप दिल में ये इरादा कर लेते हैं कि मैंने उससे मुलाकात करनी है, तो खुदावन फिर राह रास्ते खोलता है। आमीन आमीन। आमीन। तो एक अंधी लड़की वहां आई है ब्रदर ब्रैनम से मुलाकात करने के लिए, ब्रदर ब्रैनम से मिलने के लिए, लेकिन उस तक पहुंचना नामुमकिन है, नबी तक जाना नामुमकिन है, क्योंकि रश बहुत ज्यादा है। तो फिर खुदावन राहें और रास्ते खोलता है। तो अचानक ब्रदर ब्रैनम के कॉल मसूल हुई। वो कॉल, अगर मैं इस कॉल की बात करूं फिर बहुत लंबी हो जाएगी वो। तो जब कॉल मसूल हुई तो ब्रदर ब्रैनम थोड़ी देर के लिए उनसे जुदा हुए, यानी कि उस मीटिंग को छोड़कर किसी और जगह गए, अपनी वाइफ को लेने गए थे। ये बहुत लंबी स्टोरी है। तो वो जब वापस आए हैं तो फिर वापस पुलपट पर जाते हुए लोग उनको धक्के दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ब्रदर ब्रैनम को बाय फेस नहीं जानते थे, नाम से वाकिफ थे, बाय नेम जानते थे, लेकिन बाय फेस वाकिफ नहीं थे। तो ब्रदर ब्रैनम अपनी ही मीटिंग में जा नहीं पा रहे, क्योंकि लोगों का रश इतना ज्यादा था, लोगों के अंदर से गुजरते हुए जा रहे हैं। तो अचानक वो उस अंधी लड़की से टकरा गए। क्या हुआ? अचानक उस अंधी लड़की से टकरा गए हैं। जब भी उस अंधी लड़की से टकराए हैं जो अपने दादा के साथ आई थी, तो जो ही टकराए हैं तो ब्रदर ब्रैनम किसने टाई को पकड़ लिया। क्या कि उसकी टाई को पकड़ लिया है। तो उसके टकराई है। ब्रदर ब्रैनम से पूछा आप कौन? कहते कि मैं अपने दादा के साथ आई हूँ और मैं इस भीड़ में कहीं मेरा दादा खो गया, मैं इसे ढूंढ नहीं पा रही क्योंकि मैं आंखों से अंधी हूँ। वो तुम यहाँ किस लिए आई हो? उसे कहा कि मैं यहाँ शिफा पाने के लिए आई हूँ, क्योंकि पिछले दिन हमने सुना है कि एक अंधा, जन्म का अंधा था, उस बुजुर्ग ने शिफा पाई थी। तो मैं भी अंधी हूँ और मैं भी शिफा पाने के लिए आई हूँ, और मैं उस नबी से जो विलियम मैरियन ब्रैनम है उससे मुलाकात करने के लिए आई हूँ। अच्छा, अब उसको जानती है कि मैं ऐसे नहीं जानती, लेकिन मैंने इसका नाम सुना है, मैंने इसका पैगाम सुना है, मैंने वो गवाहियां सुनी है, वो शिफाओं के बारे में सुना है जो लोगों ने रिसीव की है। वो कहते कि अब तुम मुझसे कैसे ढूंढोगी? कहते कि अगर आप उस बेटी के, उस बच्ची के जो अल्फाज हैं उस पर गौर करें। वो कह रही है कि अगर आप मेरी रहनुमाई उस शख्स तक कर दें जो कि ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम है, तो मैं अपना दादा आप ही दब दूंगी। हालेलुया। ये उसका ईमान था, क्योंकि जब हम अंदर ईमान को ठहरा लेते हैं तो हमारे ईमान के मुताबिक होता है। Only believe all things are possible। तो सिर्फ फक्त ईमान रखने की जरूरत। आमीन। उससे ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अच्छा, उसे क्या तू जानती है कि तेरे सामने जो खड़ा है कौन है? कहते नहीं। उसे कहा मैं ही ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम हूं। आमीन। क्योंकि उसके अंदर ये ईमान था, वो उससे मिलना चाहती थी, वो उससे मुलाकात करना चाहती थी। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में ये बात को ठहरा लेते हैं खुदा से मुलाकात करने के लिए, तो खुदा फिर आपके लिए राहें और रास्ते खोल देता है। फिर सारी मुश्किलें खत्म हो जाती है। आमीन। फिर आप उससे मुलाकात कर लेते हैं। तो फिर ब्रदर ब्रैनम ने कहा आप क्या आंखें बांध ली? उसकी आंखें तो खैर अंधी थी। फिर ब्रदर ब्रैनम ने वहां पे दुआ की कि खुदावंद एक शख्स था जिसने तेरी सलीब को उठाया था, ये आज उसी की बेटी यहाँ पे आंखें प्रेज गॉड। इसके ईमान के मुताबिक जवाब दी। प्रेज।
जो इन बहनों ने अपनी दुआ में आमीन कहा है, तो उस लड़की ने चलाया है आमीन के मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। हालेलुया। ये उस पर मेरा ईमान था। जब उसकी मुलाकात उस शख्स से हुई है, जब उसकी मुलाकात हमारे जमाने के नबी से हुई है, तो उसने अपनी आंखों को बांध लिया। आज भी मुलाकात जरूरी है। जब हम खुदावन से मुलाकात करना चाहते हैं तो खुदावन हमारी तमाम राहें और रास्ते खोले। आमीन। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदावन से मुलाकात करने की जरूरत है। यस आमीन। क्या हमारी मुलाकात खुदा से हो चुकी? यस आमीन। क्या हमारी मुलाकात नबी से हो चुकी? Yes. क्या हमारी मुलाकात इन मैसेज से हो चुकी? Yes, आमीन। इन मुकाशफात से हो चुकी? आमीन। आप खुश नसीब लोग हैं कि आपकी मुलाकात इन सारी बातों से हो चुकी है। आमीन। अब सिर्फ एक मुलाकात बाकी है। हालेलुया। वो मुलाकात आपकी बातों पे होगी। आमीन। है। आमीन। हालेलुया। लेकिन उस मुलाकात से पहले ये सारी चीजों से मुलाकात करनी पड़ेगी। आमीन। आमीन। तभी मुलाकात होगी। जब तक दरवाजा नहीं खोलेगा फिर मुलाकात नहीं हो सकती। आमीन। आमीन। खुदा इन बातों के लिए आप सबको बरकत दे। God bless you brother.